So now one by one just tell me all the formulas which we have discussed in last lecture. So first we have discussed the definition of gamma function. Okay, so can anyone tell me what is the definition of gamma function? So gamma of n, it is denoted, this we have to read it as gamma of n, है ना? So gamma of n is equal to, yes, anyone? Summation of 0 to infinity. Integration Integration of of 0 to infinity. It contains two terms. Okay, one is exponential e raised to minus t, and minus e raised t. to what? If it is n here, then you have to n convert minus 1. n minus 1. Okay, into dt. This is the definition of gamma function. Okay, and remember, just 1 minute. And remember, this n is actually belongs to a real number. Okay, set of real number except, okay, non-negative numbers, non-positive numbers. और ठीक है, हाँ, except non-positive integers. It means we have to delete that minus 1, minus 2, minus 3 and all those numbers. Okay, so for all the remaining values this gamma function is defined. Okay, it is defined only, but still we cannot calculate the gamma of n for all n. ये भी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि चलो gamma of n सारे वैल्यूज के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट दिस फ्यू वैल्यूज, ओके, विच आर से माइनस 1. Okay, so it is not defined for minus 1, minus 2, minus 3. इन वैल्यूज के लिए ये gamma function डिफाइन नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि सारे for all the remaining values this gamma function is defined. Okay, but we cannot calculate for all those values. Okay, there are some values where where the gamma of n, okay, it is not possible to calculate. For example, for if I take n equal to 1 by 4, so gamma of 1 by 4 आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, या मतलब उसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन पुट करके वो सॉल्व करना होगा, ठीक है. तो मैन्युअली यहाँ पे gamma of 1 by 4 कैलकुलेट करना पॉसिबल है ही नहीं. तो कौन कौन से केसेस में आपका gamma फंक्शन कैलकुलेट होता है, दैट कम्स इन सेकंड रिजल्ट. तो एक मैंने इन जनरली आपको रिजल्ट दिया था. सो दिस gamma of n is equal to, now let me give you all possible values where you can calculate this gamma function. So first result is what? N minus 1 factorial. Okay, this we have to use only for n is equal to 1, 2, 3 and so on. Okay, any integer values. Okay, next is what? N minus 1 into gamma of n minus 1. Okay, this we have to use for, yes, 1 by 2. हाँ, 1 by 2 के लिए तो स्पेशल रिजल्ट है. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3 by 2, 5 by 2, then 7 by 2, 9 by 2 and so on. Okay, just give me 1 minute. किरण लेक्चर ला रहे. हाँ हाँ हाँ, ठीक आहे. त्याचा कॉल आला तर मग घे, नाही तर मी करतो त्याला एकदा लेक्चर झाला. बरं, चालेल चालेल. Okay, yeah, so 9 by 2 and so on. Okay, next result is what? Next formula is gamma of n plus 1 upon n, and this is only for minus 1 by 2, minus 3 by 2, minus 7 by 2 and so on. Okay, so only in this cases we can calculate a gamma function. Okay, that is our result. And there is one more formula. These are the special values in which I think एक केस में हमने रिजल्ट देखा था, gamma of 1 is equal to 1. Okay, this we have proved in our last lecture. Gamma of 0 is equal to, yes, ये किया था क्या हमने? No, to some. So gamma of 0 is infinity. Let me give you this proof also. And there is one more special value which is gamma of 1 by 2, okay, which is equal to root pi. ठीक है, तो ये डायरेक्ट होगा नहीं,
तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, वाई दिस गैमा ऑफ जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यू हैव टू यूज द रिमेनिंग रिजल्ट्स, ओके। सो दैट विल मतलब ये रिजल्ट यूज करना है, गैमा ऑफ n इक्वल टू n-1 इंटू गैमा ऑफ n-1, एंड फ्रॉम दैट यू कैन ट्राई दिस गैमा ऑफ जीरो, ओके। So gamma of 1/2 equal to root pi. These are the special values that we need to remember, okay, while using this result. जब भी आपको ये रिजल्ट यूज करना है उससे पहले आपको ये तीनों वैल्यूज याद रखने होंगे। 1/1 आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, इसका जो प्रूफ है वो मैंने दिया था, इसका प्रूफ मैं आपको बाद में देता हूँ। गैमा ऑफ 1/2 इक्वल टू रूट पाई, ओके। दिस इज अ स्पेशल रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रूव इन अवर नेक्स्ट यूनिट, ओके। मल्टीपल इंटीग्रल में ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑन दिस गैमा फंक्शन, ओके। इतना ही हुआ था लास्ट लेक्चर में, यस। हाँ, there is one more formula. There is one more formula. Can anyone tell me that? There is one more formula. Gamma of p into gamma of p minus p. Gamma of p into gamma of 1 minus p is, I think, pi upon sin p pi. This is also a special formula, okay. And there is a condition on p that p lies between 0 and 1. Okay, so only in that case we have to use this result. Okay. Now come to next. Okay, now today we'll discuss some examples on this gamma function, ठीक है। So what I will do, just 1 minute, I will take बुक में ऐसा नहीं है, ओके। बुक में उन्होंने रैंडम एग्जांपल्स दिए, तो मैं उनको डिफरेंशिएट करके आपको देता हूँ। बेसिकली देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एग्जांपल आर देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। सारे क्वेश्चन इन्हीं 4 टाइप में किसी ना किसी के ऊपर आने वाले, क्योंकि इस यूनिट में सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो आपको जाने वाला है ना, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन, ओके। वेयर वी हैव टू यूज गैमा, वेयर वी हैव टू यूज बीटा, वेयर रिडक्शन, वेयर डिवाइस एंड ऑल। तो जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे ना, तब आपका कन्फ्यूजन इंक्रीज होगा। दैट इज द मेजर डिफिकल्ट पार्ट एज फार एज दिस यूनिट इज कंसर्न, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएट करके देने वाला हूँ कि कौन कौन से टाइप के अंडर ये गैमा फंक्शन आता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। सो now we have to discuss some examples on this. So examples on gamma function, that we have to start with the first type, type 1, ठीक है। Examples on definition, examples on definition means what, okay। तो सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन का फॉर्म ये होगा, 0 to infinity e raised to minus something, साइन भी प्लस होगा माइनस होगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन आल्सो, ओके। इस फॉर्म में आपको एग्जांपल आने वाला है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म मींस एग्जांपल्स और इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 to infinity। मतलब आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि अगर एग्जांपल में लिमिट 0 to infinity आपको गिवन है एंड एक्सपोनेंशियल का टर्म गिवन है, आप देखो ट्रिक क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity इज गिवन एंड एक्सपोनेंशियल टर्म इज गिवन, तो वो क्वेश्चन आपको कंपलसरी गैमा फंक्शन से करना है, ओके। लेट मी गिव यू फर्स्ट एग्जांपल। ये ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दिस इज द ट्रिक टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस ऑन गैमा फंक्शन, ओके। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। 0 to infinity, evaluate integration from 0 to infinity, yes, x raised to 7 into e raised to minus 2 x raised to 4 dx, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, 0 to infinity x raised to 7 e raised to minus 2 x raised to 4 dx, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन, ओके। तो पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको गैमा फंक्शन से क्यों जाना है, व्हाई वी हैव टू यूज दिस गैमा फंक्शन, ठीक है। हाँ, अभी एट द एंड आपका एम क्या है, सारे एग्जाम्पल में, ओके, इन ऑल द एग्जाम्पल्स ऑन गैमा फंक्शन, एट द एंड आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब एट द एंड दिस इंटीग्रेशन मस्ट बी ऑफ द फॉर्म e raised to minus t raised to some power। कैसे भी करके आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो दैट वी कैन राइट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एज गैमा ऑफ n+1। ये आपका एम है, ये आपका टारगेट है, ये आपका क्लेम है। आपको कैसे भी करके इस इंटीग्रल को इसमें कन्वर्ट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली आपका वे क्या होगा, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीग्रल, ओके। नाउ कैन एनीवन टेल मी हाउ यू डू दैट?
अभी यहाँ पे गामा फंक्शन से ही आपको जाना है, गामा फंक्शन से जाना है मतलब इसमें कन्वर्ट करना है। व्हाई वी हैव टू यूज गामा फंक्शन, क्योंकि ये इस टाइप में आ रहा है जिसमें 0 टू इन्फिनिटी लिमिट भी है एंड एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो यहाँ पे गामा फंक्शन से ही जाना है। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज माय सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ दिस? 2x raised to 4 is equal to t. वेरी गुड, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है ना वो e raised to minus t के फॉर्म में ही चाहिए। ओके, सो ऑब्वियस ये भी आपको 1 मार्क के लिए आने वाला है क्वेश्चन। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व दिस इंटीग्रल? सो हियर वी नीड टू पुट 2x raised to 4 is equal to t। ठीक है, दिस इज योर स्टेप 1, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सब्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज योर स्टेप 1, वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सब्स्टिट्यूशन। इन सेकंड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट x। सारे क्वेश्चन में आप ये प्रोसेस याद रखो जो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में आपको x कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको dx कैलकुलेट करना है। ओके, डोंट जंप डायरेक्टली, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट x। तो उसके पहले मैं x raised to 4 कैलकुलेट कर लेता हूँ। x raised to 4 इज t/2, बट आई वांट टू कैलकुलेट x, सो x इज इक्वल टू व्हाट? यस, t raised to, मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, t raised to 1/4, 2 raised to 1/4। इज दिस करेक्ट? ये करेक्ट है? कैन आई राइट x as Yes, t raised to 1/4, 2 raised to 1/4? इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट? होल आला पाहिजे। यस सर, ये बस लिखने का अप्रोच है, बट ये करेक्ट है। ओके, अभी शायद आपको एक और रिजल्ट इसमें नहीं समझ में आ रहा है। ये कैन आई राइट दिस x square is equal to a? कैन आई राइट x is equal to a raised to 1/2? प्लस माइनस। Yes, sir. लिख सकते हो आप ऐसा फॉर ऑल x? प्लस दिस इज वेदर दिस इज ट्रू फॉर ऑल x? नो सर, नेगेटिव लाइन है। नेगेटिव के लिए प्रॉब्लम आता है। ओके, बिकॉज एट दैट इस केस में x की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यस, प्लस और माइनस √a। बट अगर मैं यहाँ पे x को बाउंड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस कंसिडर x इज पॉजिटिव, x स्क्वायर इक्वल टू है एंड वेयर x इज पॉजिटिव, अगर मुझे पता है कि मेरा x पॉजिटिव ही है तो मेरा आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू a raised to 1/2। ठीक है, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो x है, x के लिमिट क्या है? x के लिमिट क्या है इस केस में? x का लिमिट क्या है? 0 to infinity. My x is bounded between 0 to infinity. It means my x is positive. Okay, यहाँ पे x मेरा पॉजिटिव है तो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो इसलिए आपको साइन का पार्ट देखना ही नहीं है। ओके, दैट सेव्स अवर टाइम, नहीं तो ये दो मतलब रूट्स आ जाते हैं, फिर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ओके, इट इंक्रीजेस टाइम। नाउ सो फर्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेप इज फाइंड x। नाउ इन थर्ड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट dx। सो डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, सो dx इज इक्वल टू व्हाट? दिस 2 raised to 1/4 इज कांस्टेंट, सो लेट मी जस्ट राइट इट एज इट इज 1/2 raised to 1/4 इनटू, नाउ t raised to 1/4 का डेरिवेटिव क्या आएगा? n x raised to n minus 1, so 1/4 minus 1 and multiply by derivative of t which is dt। ठीक है, so just let me write it again, so dx is equal to 1/2 raised to 1/4 okay into this 1/4 and what is this? t raised to minus 3/4। ठीक है, so this is your third step जिसमें आपको dx कैलकुलेट करना है, फाइंड dx। ठीक है, हाँ, नाउ रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज। समवन प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, आई हैव टू गो इन नेक्स्ट स्लाइड। या ठीक है, नहीं ठीक है, एक एग्जांपल मैं अच्छे से दे देता हूँ। हाँ, अभी आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखो। नाउ कंसिडर गिवन इंटीग्रल। क्या था आपका गिवन इंटीग्रल? मैं आपके लिए फिर से लिख लेता हूँ। 0 to infinity x raised to 7 e raised to minus 2x raised to 4 dx, यही था, करेक्ट? ओके, सॉरी, वन मोर कैलकुलेशन दैट वी नीड टू परफॉर्म हियर। एक और क्या करना होगा आपको अपने dx कैलकुलेट किया, यहाँ पे आप अभी सब्स्टिट्यूशन आप ले रहे हो ना, इसका मतलब क्या होता है? जब आप 2x raised to 4 इक्वल टू t पुट करते हो, इसका मतलब इस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करना है? किया 11th-12th में किसी भी इंटीग्रेशन में, जो अगर आप कोई वेरिएबल पुट करते हो ना, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस होल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ व्हाट?
टी ना, अगर आप मतलब एक्स वेरिएबल को Yes. आप टी वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो ना, इसका मतलब इस पूरे इंटीग्रेशन को आपको टी में कन्वर्ट करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैंने यहाँ पे एक्स कैलकुलेट किया था, तो मैं सारी जगह पे एक्स से रिप्लेस करूंगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई कैलकुलेट डीएक्स, तो मैं डीएक्स को भी रिप्लेस करूंगा। अभी एक्स टी में कन्वर्ट हो चुका है, डीएक्स भी टी में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी टर्म टी में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वी नीड टू चेक द लिमिट्स, लिमिट्स भी चेक करने होंगे, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो लिमिट्स भी आपको चेक करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो गिवन है, गिवन इंटीग्रल में वो x के लिमिट है। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x? क्या x के लिमिट्स है यहाँ पे? 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज गिवन। यहाँ पे गिवन क्या है? x के लिमिट है, विच इज 0 टू इन्फिनिटी, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे t के लिमिट चाहिए। सो व्हेन माय x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज t? 0। आप इस इक्वेशन में पुट करो, इसमें पुट करो, ओके, फर्स्ट में। सो व्हेन माय x इज इक्वल टू 0, माय t इज 0। व्हेन माय x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू x इज इन्फिनिटी, t इज आल्सो इन्फिनिटी। तो देखो मैंने क्या क्या कैलकुलेट किया है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन x कैलकुलेट करना है, dx कैलकुलेट करना है, लिमिट्स भी कैलकुलेट करने हैं। ओके, नाउ आई कैन कन्वर्ट दिस होल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ t। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो ये मेरा था गिवन इंटीग्रल, मुझे इस इंटीग्रल को टोटल कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो कैसे? तो उसके लिए हमने क्या क्या किया था, मैं प्रीवियस स्लाइड से कुछ चीजें कॉपी करता हूँ। आई नीड माई x, तो ये x मेरा क्या है? x की वैल्यू क्या है? t रेस टू 1/4, 2 रेस टू 1/4। आई नीड माई dx। इसके आगे थोड़ा जंप करने वाला, अभी पहला ही क्वेश्चन है, तो चलो धीरे धीरे जाते हैं। हाँ, वो क्या है? 1/2 रेस टू 1/4। ओके, सो 1/4 into 2 raised to 1/4, then t raised to -3/4, t raised to -3/4 dt। इतना हमें चाहिए। Now let's write that part, ठीक है? Let me change the color after this. So equal to, okay, अभी हमें ये पूरा पार्ट t के लिए लिखना है। तो what are the limits of t? t के लिमिट्स क्या थे? सेम थे, 0 टू इन्फिनिटी, तो वही मैंने कॉपी किए। नाउ आई हैव टू राइट हियर x रेज़ टू 7, बट x की वैल्यू क्या है? t रेज़ टू 1/4, 2 रेज़ टू 1/4। सो व्हाट इज x रेज़ टू 7? यस, raised to 7/4, 2 raised to 7/4। मैं इसलिए इसको मतलब कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेप में इमीडिएटली हमें समझ में आएगा। ओके, सो जैसे वैसे लिख रहा हूँ, t रेज़ टू 7/4 एंड 2 रेज़ टू 7/4। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू 7 मल्टीप्लाई विद e रेज़ टू 2x रेज़ टू 4 को तो हमने t पुट किया था, तो वो डायरेक्टली e रेज़ टू t में जाएगा। dx की वैल्यू क्या है? माय dx इज 1/4 इंटू 2 रेज़ टू 1/4 t रेज़ टू -3/4 dt। और कुछ रिमेनिंग है क्या? हो गया सारे? हो गया? Yes, sir. अभी आप देखो, इस इंटीग्रेशन में कहीं पे भी x का टर्म नहीं है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, जब आप इस स्टेप पे आते हो ना, अच्छे से चेक करो कि इस स्टेप में कहीं पे भी आपको x का टर्म नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में सारे कॉन्स्टेंट्स को आपको बाहर लेके आना है, सारे कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, सो लेट मी राइट ऑल दोज कॉन्स्टेंट्स। सो 1/, ये 4 तो कॉन्स्टेंट है ही। अब ये क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू 7/4 and 2 रेज़ टू 1/4, इट बिकम 2 रेज़ टू 8/4 and 2 रेज़ टू 8/4 इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4। करेक्ट है ये? Yes, sir. ओके, लेट मी राइट नाउ 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, और पहले आपको e रेज़ टू -t को एज इट इज लिखना है। नाउ वी हैव टू राइट t रेज़ टू होल पावर। t की पावर चेक करो अभी क्या है। t के दो टर्म है, वन इज 7/4, नेक्स्ट इज -3/4। सो व्हाट इज द फाइनल पावर ऑफ t? 7/4 -3/4। हाँ, 1 4/4, that gives me 1. So this. Okay, अभी आप देखो। Okay, after this substitution, this integral get converted into gamma function. Okay, and now here you will get this value is 1/16. And what is value of this in terms of gamma? Gamma of what? Gamma of what? रिजल्ट क्या है gamma फंक्शन का? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू -t t रेज़ टू एनी पावर dt इज इक्वल टू व्हाट? गामा ऑफ n+1। जो भी पावर है उसमें +1 ऐड करना है। ओके, डोंट मिस दैट पार्ट। सो हियर पावर 1 है, तो 1 + 1 इज 2। एंड व्हाट इज गामा ऑफ 2? ये इंटीजर है, सो गामा ऑफ 2 क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1। सो योर फाइनल आंसर इज 1/16। समझ में आ गया क्वेश्चन पहला आपको? ओके, नाउ विल टेक
एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसके आगे आप क्विकली करो, आप भी साइड बाय साइड सॉल्व करो। ओके, एग्जाम्पल 2, लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity रूट एक्स ई रेस टू माइनस एक्स क्यूब dx। ओके, आप भी साइड बाय साइड सॉल्व करो, मैं भी आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो इन सॉल्यूशन जिनका आंसर आता है टेल मी इमीडिएटली, सो आई विल वेरीफाई। ओके, क्या करना है सब्स्टिट्यूशन। अगेन वाई वी हैव टू सॉल्व यूजिंग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन से क्यों कर रहे हो, 0 to infinity लिमिट है, एक्सपोनेंशियल का टर्म है ना, तो आपको इसको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या पुट करना होगा, एनीवन? x equal to x t. क्यूब इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे e रेस टू माइनस टी का टर्म चाहिए। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इमीडिएटली x कैलकुलेट करो, सो x इज इक्वल टू टी रेस टू 1/3। आफ्टर दैट कैलकुलेट dx, सो dx इज n x raised to n minus 1, so n minus 1, what is that, minus 2/3 dt। okay, dt। now next is what, next क्या चेक करना है, लिमिट्स है ना। तो x के लिमिट क्या है, x के लिमिट क्या है, 0 to infinity। 0 to infinity. हाँ, t के लिमिट्स यहाँ पे कभी नहीं चेंज होने वाले, बट you can check, x is 0, t is 0, x is infinity, t is infinity। okay, now I can write given integral। चलो अभी लिखो, given integral is equal to इंटीग्रेशन, अभी मैं डायरेक्ट चेंज करके लिखने वाला। लिमिट्स मुझे चाहिए t के लिमिट्स क्या है मेरे पास, 0 to infinity। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप करो आगे। ओके, नाउ ये क्या है, रूट एक्स है। रूट एक्स मतलब होता है एक्स रेस टू 1/2। एक्स रेस टू 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, टी रेस टू व्हाट। 1/6. अब देखो यहाँ पे मुझे एक्स रेस टू 1/2 की वैल्यू चाहिए, मेरे पास एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स रेस टू 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, टी रेस टू 1/6। ये कैलकुलेशन केयरफुली करो। या नाउ ई रेस टू माइनस टी, डी एक्स का तो मैंने सॉल्व किया है, एन एक्स रेस टू n माइनस 1 डी टी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेके आ जाओ, ओनली वन कांस्टेंट 1/3 इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेस टू माइनस टी का टर्म लिखो। नाउ फाइंड द पावर ऑफ टी, सो टी 1/6 माइनस 2/3, व्हाट इज दैट वैल्यू, यस 1/6 माइनस 2/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा -4। हाँ, यस -1/2 -1/2 करेक्ट है। ओके, yes sir। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज दिस वैल्यू। अब ये टोटली गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, सो गामा ऑफ व्हाट, 1/2 जो plus भी 1. पावर है उसमें +1 ऐड करके लिखो, तो -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2। एंड व्हाट इज गामा ऑफ 1/2, Root pi. पाई, सो फाइनल आंसर इज √π/3। इतने ट्रिवियल क्वेश्चन है आपको, ठीक है। एंड विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अब एक और दे देता हूं मैं आपको, एंड देन विल गिव सम एग्जांपल्स फॉर होमवर्क आल्सो। मैं एक पीडीएफ आपसे शेयर करता हूं। 0 to infinity e रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 dx। डू इट इमीडिएटली, या आप करो, एक और मैं देने वाला हूँ, दोनों में से देखो जो डिफिकल्ट है वो सॉल्व करके देता हूँ। ई 0 to infinity, हाँ ये एक, ओके हाँ, ई रेस टू माइनस √x dx। चलो कोई भी, हाँ थर्ड सॉल्व करो और मुझे आंसर बोलो डायरेक्टली, डू इट। थर्ड फोर्थ सॉल्व करो, मैं भी साइड बाय साइड कर लेता हूँ आपके साथ। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, सो लेट मी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो उसके लिए मुझे पुट करना होगा, क्या पुट करना है, x रेस टू 4 इज इक्वल टू t, दैट गिव्स मी x इज इक्वल टू t रेस टू 1/4, है ना, दैट गिव्स मी dx इज इक्वल टू n x रेस टू n -1 -3/4,
डी टी, लिमिट्स आप चेक करो, लिमिट सेम ही रहेंगे, x के लिमिट्स है 0 to इन्फिनिटी, t के भी लिमिट सेम ही रहेंगे, ओके 0 to इन्फिनिटी. So now you can write a given integral. So given integral is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus t, dx की वैल्यू क्या है n, x raised to n minus 1 dt. okay, so that gives me given integral is equal to 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e raised to minus t, t raised to minus 3/4 dt. ओके, सो उसका गैमा में क्या बन जाएगा, गैमा ऑफ व्हाट 1 प्लस क्या आ जाएगा, ये बोलो क्या लिखना है, 1/4. कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ गैमा ऑफ 1/4, कैन वी फाइंड, तो इसको ऐसे रखना है, तो यही होगा ऑप्शन में. ठीक है, सो ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. सर ते sin p पायचा फॉर्म्युला कधी वापरायचा मग? त्याच्यावर आहेत पुढे एक्झाम्पल्स आहेत येणार आहे ते. ऍक्च्युअली सी बीटा फंक्शन में भी आप क्या करने वाले हो, तो ये दो टॉपिक में ये सारी चीजें चाहिए आपको. बीटा फंक्शन भी क्या होता है, बीटा फंक्शन को भी आप इन टर्म्स ऑफ गैमा लेके आने वाला, मैं आपको बोलता हूँ कैसे वो होगा सब कुछ. ठीक है, सो बीटा फंक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन गैमा फंक्शन, तो ये कहीं ना कहीं पे वो साइन पी पाई का फॉर्मूला आने वाला है. ठीक है, ओके, एंड नाउ लेट्स डू दैट क्वेश्चन नंबर 4. मुझे बस बोलो क्या पुट करना है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, x 1/4 पावर ऑफ x raised to 1/4. x raised to 1/4 is equal to t. हाँ सॉरी t नहीं, हाँ इसका मतलब होता है x raised to 1/4. हाँ वो नहीं, पुट क्या करना है आपको, रूट एक्स इक्वल टू टी, मतलब आपको पुट करना है रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इट मीन्स x इज इक्वल टू t raised to 1/2, सॉरी t स्क्वायर ना, x की वैल्यू क्या आएगी, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, विल गेट t स्क्वायर, dx इज इक्वल टू 2t dt. ठीक है, लिमिट सेम ही रहेंगे, x के लिमिट है 0 to इन्फिनिटी, t के भी लिमिट्स वही आएंगे. ओके, नाउ राइट द गिवन इंटीग्रल. सो माय गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू यस एनीवन 0 to इन्फिनिटी. नाउ टेल मी दिस फर्स्ट टर्म, x रेज़ टू 1/4 की जगह पे क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, बोलो x रेज़ टू 1/4 की जगह पे क्या t raised to 1/2. 1/2. वेरी गुड, 1/2. ओके, ये समझ में आ गया, जिसके आगे कुछ है नहीं, dx इज 2t dt हो गया. कैन आई कैन टेक 2 आउटसाइड, 0 to इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस t, t रेज़ टू व्हाट इज द फाइनल पावर ऑफ t, बोलो 3/2. 3/2. So that gives me 2 into gamma of what, 5/2. 5/2. एंड 2 कैसे कैलकुलेट करना है, गैमा ऑफ 5/2 पीछे के नंबर 3/2 into 1/4. 3/2, उसके पीछे का नंबर है 1/2, जैसे 1/2 आता है रूट पाई लिखो, हो गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस टाइप 1. ओके, ऑलरेडी हम पीछे है, जस्ट लेट मी सेव दिस. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप. ठीक है, टाइप नंबर 2. सो टाइप 1 आपको समझ में आ गया, जिसमें 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होता है एंड एक्सपोनेंशियल का टर्म आता है. और आपका जो सेकंड टाइप है ना, वो क्या है, हाँ एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्म, और एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप. हियर आल्सो लिमिट्स वही है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स वही है 0 to इन्फिनिटी. ये इस फॉर्म में दिखाई देता है, x रेज़ टू a अपॉन a रेज़ टू x dx. अब ये इन जनरली दिया है मैंने, एक की जगह पे वैल्यू होगी 2 होगी, सो x रेज़ टू 2 अपॉन 2 रेज़ टू x, x रेज़ टू 4 अपॉन 4 रेज़ टू x. ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इन जनरली सॉल्व करके देता हूँ, इसको ही सॉल्व करते हैं, है ना, जो गिवन है उसको ही सॉल्व करते हैं, बाकी सारे केसेस में हो जाएगा. तो ये भी एग्जाम्पल आपको गैमा फंक्शन से ही करना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे. सो नाउ लेट अस टेक दिस एज अ क्वेश्चन.
मैं इन जनरल भी सॉल्व करके देता हूँ, तो आपको फिर एक ही जगह पे नंबर लेने के बाद कुछ कैलकुलेशन चेंज होगा नहीं, है ना। सो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity x रेस टू a अपॉन a रेस टू x। अभी मुझे आप देखना है कि आप कैसे सोचते हो क्वेश्चन के बारे में, है ना। सो इन सोल्यूशन मैं बस आपको एक ही हिंट देता हूँ, आप मुझे बोले इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। मैं क्या करता हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी लेट मी राइट दिस क्वेश्चन एज x रेस टू a इंटू a रेस टू माइनस x dx। और अभी आपका क्लेम क्या है, आपको करना क्या है, इस इंटीग्रल को मुझे कैसे भी करके इसमें कन्वर्ट करना है, e रेस टू माइनस t t रेस टू n dt, so that I will get my answer as gamma of n plus 1. Now think on this and tell me this substitution क्या मुझे पुट करना होगा। So log म्हणजे x रेस टू a किंवा a रेस टू मायनस x ला log t मध्ये टाकायचं आणि log मध्ये टाकायचं आणि त्याला t ने इक्वल करायचं। So at then what, a रेस टू माइनस x की जगह पे आप क्या रखने वाले हो, log a रेस टू x इक्वल टू t। अभी ये देखो, ये पहले सोचो, डायरेक्टली x नहीं मिलेगा आपको, है ना, डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं मिलेगी। मुझे बस पहले आपसे क्या चाहिए कि मतलब क्या चेंज करना होगा आपको, कैसे भी करके यहाँ पे e रेस टू माइनस टी आना चाहिए, दैट इज योर एम। कैसे भी करके इन दोनों में से एक टर्म की जगह पे मुझे e रेस टू माइनस टी चाहिए, यही थॉट है। दोनों टर्म में से किसी एक टर्म की जगह पे मुझे e रेस टू माइनस टी चाहिए। नाउ टेल मी, फर्स्ट टेल मी कि x रेस टू a के जगह पे e रेस टू माइनस टी आ सकता है या a रेस टू माइनस x की जगह पे e रेस टू माइनस टी आ सकता है, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों में से कौन से टर्म की जगह पे मैं e रेस टू माइनस टी को एडजस्ट कर सकता हूँ। यस सर ते कुठं पण करू शकतो आता e रेस टू log x रेस टू, बट व्हाट यू फील कि मुझे x रेस टू a की जगह पे चाहिए या e रेस टू माइनस x की जगह पे चाहिए, व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड दैट। a रेस टू x ला गेला तर ते इझिली डिफरेंशिएट होतं। ओके बट नॉट एग्जैक्ट। ओके मैं आपको बोलता हूँ, मुझे अब अगर आप ये फंक्शन देखते हो ना, इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल और एक होता है x रेस टू सम पावर, t रेस टू n मतलब x रेस टू सम पावर। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, ये जो सेकंड टर्म है ये इससे मैच कर रहा है, एम आई करेक्ट, x रेस टू सम पावर इज सिमिलर टू x रेस टू सम पावर, करेक्ट है, करेक्ट कि नहीं। यस सर। हाँ, ये जो सेकंड टर्म है थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है, तो अगर मुझे कहीं पे चेंज करना ही है ना, तो मैं इस टर्म को ही चेंज करूंगा, बिकॉज दैट दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय दिस टू टर्म्स। ये कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है, ये टोटल डिफरेंट टर्म है, ए रेस टू माइनस एक्स। एक तो अगर ए रेस टू माइनस टी का होता तो मैं उसको आई विल कीप दैट टर्म एज इट इज, अगर एक्स रेस टू एन का टर्म होता तो भी मैं उसको वैसे रख सकता हूँ, बट यहाँ पे ए रेस टू माइनस एक्स इज टोटली डिफरेंट टर्म, सो आई डोंट वांट दिस टर्म। मुझे इस टर्म की जगह पे, सो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म व्हाट आई वांट वो लिखो, मुझे इस टर्म की जगह पे क्या चाहिए, ई रेस टू माइनस टी, जो चाहिए वही मैंने लिख लिया। नाउ आई विल कैलकुलेट एक्स, अभी इसके आगे मुझे एक्स कैलकुलेट करना, तो क्या करना होगा, व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रोसेस टू कैलकुलेट एक्स। यस, taking log on both sides, so taking log on both side, that gives me minus x log a is equal to minus t log e. What is value of log e? ये सारा ln है, सारा ln के लिए। हाँ, मैं लिखते समय log लिखूंगा, कुछ भी लिखूंगा, बट दिस इज ऑल फॉर ln। सो माइनस माइनस कैंसिल होगा, यू विल गेट x ln ही लिखो क्या, ठीक है मैं ln ही लिख लेता हूँ। हाँ बोलो इसके, हाँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ log e, 1, so let me write this, okay, and now this gives me x, so my x is equal to t upon ln a और log a, आप कैसे भी लिखो, log लिखो ln लिखो, उससे कुछ इफेक्ट होगा नहीं। या इफेक्ट मतलब बाय डिफॉल्ट इन आवर सिलेबस वी अज्यूम दैट ऑल आवर लॉग्स आर अबाउट log टू द बेस e, ln ही है सारे जगह पे। या नाउ टेकिंग dx, so that gives me dt upon ln a, ठीक है। अभी चाहिए मुझे लिमिट्स, लिमिट चेक करो x और t के, x के लिमिट्स गिवन है 0 to infinity, हाँ when x is 0, यहाँ पे चेक करो, when x is 0 t is 0, when x is infinity t is infinity, ठीक है, हो गया ये भी। नाउ लेट मी राइट गिवन इंटीग्रल, सो माय गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू, अभी आप बोलो, हाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity, इसमें बोलो x रेस टू a की वैल्यू क्या आएगी,
x रेस टू ए की वैल्यू, हाँ बोलो e raised to a upon ln a raised to e रेस टू ए अपॉन ln a रेस टू a रेस टू माइनस एक्स की जगह पे मैंने रिप्लेस ही किया है e रेस टू माइनस टी, एंड माई dx इज dt अपॉन log a और ln a. So the total constant is 1 upon ln a raised to what? a plus 1. A plus 1, and in bracket or in integration you will get 0 to infinity e raised to minus t t raised to a dt. So the final answer is, so what is this? Gamma of what? A plus Gamma 1. of a plus Plus 1. 1. Very good. And upon ln a raised to a plus 1 हो गया. That is your final answer. ठीक है. अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? लेट मी टेक दैट. कुछ सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इन जनरली सॉल्व किया. सो ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, जो मेरे पास है वही मैं दे देता हूँ, x रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू x dx. टेल मी दिस आंसर डायरेक्टली. एक और ऐसा भी आ सकता है, x स्क्वायर 2 रेस टू माइनस एक्स डी एक्स. बोलो. अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, आंसर क्या आता है? गैमा ऑफ a प्लस 1 अपॉन ln a रेस टू a प्लस 1. सो व्हाट इज दिस? Gamma of 5 upon ln 4 raised to गैमा ऑफ 5 5 upon प्लस ln 1 अपॉन ln a रेस टू a प्लस 5. 5. यही है. सो दैट गिव्स मी गैमा ऑफ 5 क्या होता है? 4 factorial. फैक्टोरियल अपॉन ln 4 रेस टू 5. ये ट्रिक आप एग्जाम में MCQs में यूज कर सकते हो. सो नो नीड टू सॉल्व एवरी टाइम. ओके. व्हाट अबाउट दिस? डायरेक्ट बोलो. गैमा ऑफ व्हाट? हाँ, Gamma of 3. ln 2 ना रेस टू 3. Yes. So that gives me 2 upon ln 2 raised to 3. This is all about second type. ठीक है. Now we'll move to the next type. ये छोटे छोटे टाइप है, ज़्यादा लेनी नहीं. Now type 3. Okay. Yes, let me save this file, नहीं तो ना लाइट का इशू हो जाता प्रॉब्लम. Yeah. Now next type is okay. So examples of the type इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे भी सेम लिमिट जा रहे हैं. ओके. a रेस टू माइनस बी एक्स रेस टू n dx. तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं कि ये एक्सपोनेंशियल का टर्म है. ये अगर मैं यहाँ पे e लिख लेता हूँ ना, सो दैट इज कवर्ड इन आवर टाइप 1. अगर नंबर रेस टू सम नंबर इनटू एक्स, नंबर रेस टू सम नंबर इनटू एक्स रेस टू सम पावर, इस फॉर्म में अगर टर्म्स आते हैं तो आपको इस मेथड से करने हैं. तो वही लॉजिक है. मैं डायरेक्टली इन जनरली देता हूँ, तो फिर किसी भी केसेस में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. सो इन सोल्यूशन, सो लेट मी टेक इट एज अ क्वेश्चन. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी a रेस टू माइनस बी एक्स रेस टू n. ये कभी कभी नीचे भी हो सकता है, 1 अपॉन के फॉर्म में आता है तो ये पॉजिटिव होगा. ठीक है. dx. ओके. नाउ सॉल्यूशन. आप बोलो अभी क्या पुट करना है, बोलो. मुझे कैसे भी करके इसमें कन्वर्ट करना है. e रेस टू माइनस टी, t रेस टू सम पावर dt, so that I will get here a gamma of n plus 1. Tell me क्या होगा मेरा सब्स्टिट्यूशन. बोलो बोलो जल्दी. a raised to minus b x raised to n equal to e raised to minus 2. वेरी गुड. अभी आप देखो ये टर्म टोटली डिफरेंट ही है. ये ना इससे मैच कर रहा है ना इससे मैच कर रहा है. तो मुझे e रेस टू माइनस तो चाहिए ही चाहिए कंपलसरी. तो जो गिवन टर्म है उसको ही रिप्लेस करो. एज दिस इज अ सिंगल टर्म विच आई डोंट वांट, सो रिप्लेस दैट टर्म बाय e रेस टू माइनस टी. सो दिस इज माय सब्स्टिट्यूशन. सो हियर put this whole term a raised to minus bx raised to n by e raised to minus t. Now we have to calculate x. तो उसके लिए मुझे लेना होगा log. So taking ln on और log on both side. ठीक है. So that gives me minus b x raised to n ln
a is equal to minus t ln e is 1, minus get cancel, you will get x raised to n is equal to t upon b ln a, but I want x, so my x is equal to t raised to 1 upon n whole divided by b raised to, और b चलो ठीक है लिख लेता हूँ सेपरेट, b raised to 1 by n and ln a raised to 1 upon n. ओके, now let me check the limits. अभी चेक करने की जरूरत है नहीं, वो सेम ही आएंगे, यहाँ पे कर लेता हूँ. x के लिमिट्स है 0 to infinity. चेक करो क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक में चेंज होने वाला है. When I put x is equal to 0, what is my t? कहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे. When I put x is equal to 0, t की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी. When I put x equal to infinity, t is also infinity. Now we can write given integral. So given integral is equal to my limits from 0 to infinity. Okay, this whole term I replace by e raised to minus t. And what is the value of dx? My dx is, okay, किया ही नहीं calculate. Can you tell me directly now what is my dx? e raised to 1 by n minus 1 upon x raised to n minus 1. This is the derivative into dt and divided by that whole constant, जो बड़ा constant मैंने नीचे लिखा है. So it will be b raised to 1 upon n ln a raised to 1 upon n. ओके, हो गया. सारे constants को बाहर लेके आ जाओ. तो क्या क्या मिल रहा है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. अरे बाप रे, सो 1 अपॉन ये n है b रेस टू 1 अपॉन n है एंड ln a रेस टू 1 अपॉन n, इतने सारे कांस्टेंट है. एंड देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस t. व्हाट इज t? t की पावर वही है 1 अपॉन n माइनस 1 dt. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? यस, यही वैल्यू क्या मिलेगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? गामा ऑफ 1 upon n. 1 अपॉन n प्लस 1 ऐड करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा. एंड होल डिवाइडेड बाय n b रेस टू 1 अपॉन n एंड ln a रेस टू 1 अपॉन. देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, बट जब नंबर्स आ जाते हैं ना, इट लुक मतलब थोड़ा प्रॉपर आपको वो समझ में आएगा. ठीक है, सो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ. एंड सो एग्जाम्पल नंबर 2, इस पे ऐसे एग्जाम्पल्स है. ठीक है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 3 रेस टू 4x स्क्वायर. ठीक है, एंड एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी a रेस टू माइनस 4x स्क्वायर dx. ठीक है, सो अभी कोई भी एक कर लेते हैं, देन विल स्टॉप. ठीक है, अभी आपको फॉर्म समझ में आना चाहिए. कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट रेस टू इनटू x रेस टू सम पावर. ठीक है, सो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2. ये आप एज अ होमवर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हो. यस, क्या पुट, ओके, इसको पहले क्या करना होगा मुझे, लेट मी जस्ट रीअरेंज दिस टर्म्स. सो कैसे लिखना होगा, 0 टू इन्फिनिटी इसको ऊपर लेके आ जाओ. सो दैट गिव्स मी 3 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर dx. नाउ टेल मी माय सब्स्टिट्यूशन. प्रीवियस मेथड से जाने वाला हूं. आप डायरेक्टली प्रीवियस का फॉर्मूला लेके भी जा सकते हो या आप सॉल्व कर सकते हो. अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो मैं सॉल्व करके देता हूं, क्यों फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, यस, एनीवन, व्हाट इज माय सब्स्टिट्यूशन? 4 raised to minus 4x square equals to e raised to minus. 4x square is totally replaced by e raised to minus t. Now taking log on both side, अभी मैं जंप करने वाला हूँ. So minus 4x square ln 3 is equal to minus t ln e. That gives me x is equal to x square is equal to t upon 4 ln 3. That gives me x is equal to t raised to 1 upon 2 upon 2 into ln 3 raised to 1 by 2. But I need to calculate dx. तो मेरा dx क्या होगा, n x raised to n minus, सॉरी n मतलब 2 ना, so n x raised to n minus 1 upon this 2 as it is, ln 3 raised to 1 by 2 as it is. You can check your limits. x के लिमिट्स क्या है, 0 to infinity. आप कहीं पे भी पुट करो, यहाँ पे पुट करो, जो सिंपल है. हाँ, यहाँ पे पुट करो. when x is 0 t is 0, when x is infinity t is infinity. So the limits will be same
And now I can write a given integral which is equal to integration from 0 to infinity. This whole term is replaced by e raised to minus t. Now just write dx which is 1 by 2 t raised to minus 1 by 2 upon 2 into ln 3 raised to 1 by 2 dt. dt रह गया यहाँ पे, हाँ dt. एंड नाउ द फाइनल आंसर इज क्या कांस्टेंट बाहर आने वाला है 1 बाय 4 ना 1 by 4 ln 3 raised to 1 by 2. Can you tell me directly what is gamma? Gamma of what? 1 by 2. 1 by 2. है ना? So that gives me root pi upon this. So 4 into ln 3 raised to 1 by 2. ठीक है? So only one type is remaining. There are total 4 types. Okay, so only one type is remaining, and then you can start beta function quickly. ठीक है? So let me just stop here. Okay, and I will share this PPT also recording. Okay, last lecture आज की.